السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے ایک اہم نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس کے تحت تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں سپروائزرز کے عہدوں پر براہ راست تقررات کیے جائیں گے۔ مخلوعہ ملازمتوں کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں: ٹریفک سپروائزر ٹرینی 84 ملازمتیں، میکینیکل سپروائزر ٹرینی 114 ملازمتیں، تنخواہ کا اسکیل 27,080 روپے سے 81,400 روپے ماہانہ۔ امیدوار بورڈ کے آفیشیل ویب سائٹ www.tgprb.in پر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ 30 دسمبر 2025 سے درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ 20 جنوری 2026 درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ ہوگی۔ بورڈ نے مشورہ دیا ہے کہ امیدوار درخواست دینے سے پہلے اپنی تعلیمی قابلیت، عمر کی حد اور دیگر شرائط و ضابطے کو ویب سائٹ پر موجود تفصیلی نوٹیفکیشن میں احتیاط سے پڑھ لیں۔ ویب سائٹ پر انتخاب کا طریقہ کار، آن لائن درخواست کا عمل اور دیگر تمام ضروری معلومات فراہم کر دی گئی ہیں۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون، جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں کرسمس تہوار کا روایتی مذہبی جوش و خروش دیکھا گیا۔ کونے کونے سے عیسائی طبقے کے افراد اپنے خاندانوں کے ہمراہ گرجا گھروں میں جمع ہو رہے تاکہ امن، محبت اور بھائی چارے کا جشن منا سکیں۔ کرسمس کے موقع پر تلنگانہ کے ضلع میدک میں واقع تاریخی CSI کیتھیڈرل میں ایک منفرد سما ہے۔ ایشیا کے دوسرے بڑے چرچ کے طور پر مشہور اس تاریخی عمارت کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا۔ صبح مڈ نائٹ ماس کے بعد خصوصی دعائیہ تقاریب کا آغاز ہوا۔ ہزاروں افراد نے چرچ کے عظیم الشان ہال میں جمع ہو کر امن عالم کے لیے دعا مانگی۔ میدک چرچ میں نہ صرف تلنگانہ بلکہ پڑوسی ریاستوں جیسے آندھرا پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر سے بھی لاکھوں کی تعداد میں عیسائی طبقے کے افراد پہنچ رہے، جس کے پیش نظر مقامی انتظامیہ نے سیکیورٹی اور ٹریفک کے سخت انتظامات کیے۔ دارالحکومت حیدرآباد کے مشہور گرجا گھروں جیسے سکندرآباد کے سینٹ میری چرچ اور شہر کے دیگر قدیم چرچوں میں بھی بڑی دعائیہ تقاریب منعقد ہوئیں۔ آندھرا پردیش کے شہروں وجے واڑہ، وشاکھاپٹنم اور گنٹور میں بھی کرسمس کی خوشیاں عروج پر۔ لوگ نئے لباس زیب تن کیے ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دے رہے، کیک کاٹنے اور تحائف کی تقسیم کا سلسلہ گھر گھر جاری۔ ان تقاریب میں صرف عیسائی طبقہ ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے افراد بھی شامل ہو کر ریاستوں کی قدیم گنگا جمنا تہذیب کی مثال پیش کر رہے۔ تمام بڑے شہروں اور خاص طور پر میدک چرچ کے ارد گرد پولیس کا بھاری دستہ تعینات کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم انجہانی اٹل بہاری واجپئی کی یوم پیدائش کو ملک بھر میں یوم بہتر حکمرانی کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر حیدرآباد میں مختلف مقامات پر تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے صبح جبلی بس اسٹیشن کے قریب واقع اٹل بہاری واجپئی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔ اس تقریب میں ہریانہ کے سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ اور رکن پارلیمنٹ راجندر بھی شریک تھے۔ بی جے پی کے ریاستی دفتر میں منعقدہ تقریب میں مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے واجپئی کی تصویر پر پھول مالا چڑھائی اور انہیں یاد کیا۔ اس موقع پر بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ مقررین نے واجپئی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں ایک عظیم مدبر اور جدید ہندوستان کا معمار قرار دیا۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے سکندرآباد کے واجپئی پارک میں بھی بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی کی ہار پہنائی کی تقریب میں شرکت کی۔ بعد ازاں انہوں نے لوک بھون میں سابق وزیر اعظم کو ان کی یوم پیدائش پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور انہیں گڈ گورننس ڈے کے طور پر منایا۔ گورنر نے واجپئی کے قوم کے لیے انمول خدمات کو یاد کیا۔ انہوں نے انہیں ایک بصیرت مند سیاستدان، فصیح پارلیمنٹرین اور لیڈر کے طور پر بیان کیا، جنہوں نے ہندوستان کے جمہوری بنیادوں اور قومی اتحاد کو مضبوط کیا۔
शमशाबाद के करीब महबूब नगर जिले में सड़क हादसा NH44 पर स्कूल बस उलट गई, स्टूडेंट्स हुए जख्मी। जड़चल्ला के करीब नेशनल हाईवे 44 पर एक सड़क हादसा पेश आया। शमशाबाद के करीब बालनगर मंडल के पैदापल्ली इलाके में जियो पेट्रोल बंक के नजदीक एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। ये बस नारायणपेट और मरिकल से मणिकंठा जूनियर कॉलेज के तलबा को लेकर हैदराबाद के जलविहार तफरीही दौरे के लिए जा रही थी। तलबा ने ऋषि स्कूल की बस किराए पर हासिल की थी। बताया जा रहा है कि आगे चल रही एक कार को बचाने की कोशिश में बस ड्राइवर का तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसके नतीजे में बस पलट गई। हादसे के वक्त बस में 43 तलबा सवार थे। वाक़े को देखते ही मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और जख्मी तलबा को बस से बाहर निकाला। इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी अमला मौके पर पहुंचा और जख्मियों को इलाज के लिए शादनगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में कई तलबा जख्मी हुए हैं, ताहम एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रही है। बालापुर पुलिस की जिमों और फंक्शन हॉल्स को रात गए इंतबाह रात गए तक चलने वाले रेस्टोरेंटों और दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट ने निफाज को मजीद सख्त करते हुए जिमों और फंक्शन हॉल्स को सख्त इंतबाह जारी किया। बालापुर पुलिस की जानिब से रात के वक्त किए गए मुआयने के दौरान जिम मालिकान और फंक्शन हॉल इंतजामिया को हिदायत दी गई कि वो मुकर्ररा औकात की सख्ती से पाबंदी करें। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया कि तमाम तकारीब और सरगर्मियाँ तयशुदा वक्त के अंदर ही खत्म की जाएं। पुलिस ने मतनबा किया कि अगर मुकर्ररा औकात की खिलाफ वर्जी की गई तो मुतल्लिका फंक्शन हॉल या इदारे की इंतजामिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये मुहिम बालापुर इलाके में अमन व आमान बरकरार रखने, अवामी परेशानी को कम करने और रात के औकात में शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के मकसद से चलाई जा रही। चलो पूरा बाहर जाओ। आदमी है सुबह से क्या कर रहे? सुबह से क्रिसमस की तकरीबात में GHMC डिप्टी मेयर मोत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत की ईसाई बरादरी को हिमायत। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी TTUC के रियासती सदर मोत्ते शोभन रेड्डी ने क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए लोगोस गॉस्पेल चर्च लालापेट तानाका में मुनक्किद क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने दुआ में शिरकत की, क्रिसमस का केक काटा और तमाम मसीही भाइयों और बहनों को मैरी क्रिसमस की मुबारकबाद दी। बादजा डिप्टी मेयर ने कहा है कि क्रिसमस मोहब्बत, अमन और रवादारी की अलामत है और हर कोई इस त्यौहार को जोश व खरोश से मनाने की ख्वाहिश करता है, जिससे लोगों में भाईचारे को फरोग मिलता है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने मसीही बरादरी के लिए कई मुफीद प्रोग्राम शुरू किए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कई फलाही प्रोग्रामों को नाफिज किया जा रहा, जैसे ईसाई इमारत की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी, त्यौहारों के दौरान खुसूसी फंड्स जारी करना, गरीब ईसाई खानदानों को माली इमदाद फराहम करना। डिप्टी मेयर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब का यकसां एहतराम करते हुए ईसाई बरादरी की तरक्की के लिए पाबंद अहद। प्रोग्राम में बहुत से मौजूदीन मसीही बरादरी के नुमाइंदों और मोमिनीन ने शिरकत की। टाइम क्या है? मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद में हैदराबाद सिटी पुलिस की रात गए गश्त। टाइम क्या है पूछते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस ने मीर चौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में रात गए सख्त गश्त किया। इस गश्त का मकसद गैर ज़रूरी नकल व हरकत पर काबू पाना और इलाके में अमन व अमान बरकरार रखना था। रात के वक्त की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दुकानों और तिजारती इदारों की जांच की ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी इदारा मुकर्ररा वक्त के बाद खुला ना हो। इसके अलावा चबूतरों पर बैठे नौजवानों, बिला वजह सड़कों पर घूमने वालों और अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी करने वालों को रोका गया। पुलिस एहलकारों ने नौजवानों से टाइम क्या है सवाल करते हुए उन्हें तनबीह की कि रात गए बिला वजह घूमना कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्हें फौरन घरों को वापस जाने और नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत दी गई। हैदराबाद सिटी पुलिस के मुताबिक इस तरह की रात गए गश्त का मकसद अवामी परेशानी को कम करना, जुराइम की रोकथाम और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि शहर में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए ये कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी।
आंध्र प्रदेश के दारुल-हुकूमत अमरावती में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर शानदार तकारीब का एहतमाम किया गया। इस खास मौके पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने वेंकटापालम के करीब सेड एक्सेस रोड पर 2.5 एकड़ रकबे पर मुहित अटल स्मृति वनम का इफ्तिताह किया। दोनों कायदीन ने स्मृति वनम में नस्ब अटल बिहारी वाजपेयी के 14 फीट बुलंद कांसे के दिव्यहिकल मुजस्समे की नकाब कुशाई की और उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया। दिशा दी, लेकिन नायडू जी रुकने वालों में से नहीं है। अब अगली क्रांति, तकनीकी क्रांति, क्वांटम युग की तरफ ले तेलंगाना जागृति की सदर कल्वाकुंटला कविता ने नामपली चैपल रोड पर वाक़े मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस के मौके पर खुसूसी दुआ प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। इसने कहा कि उन्होंने अपने बचपन से मेथोडिस्ट चर्च के साथ अपनी वाबस्तगी को याद किया। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में सुबह एक अलमनाक सड़क हादसे में 12 से ज्यादा अफराद जिंदा जल गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हरिवर तालुका के गोरलातू इलाके में एक प्राइवेट स्लीपर बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में भयानक आग लग गई और मुसाफिर अंदर फंस गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा रात 12 बजे के करीब पेश आया। प्राइवेट स्लीपर बस बेंगलुरु से गोकर्णा जा रही थी, तभी रास्ते में सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक का कुछ हिस्सा भी जल गया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 32 अफराद सवार थे। गाड़ियों की टक्कर इतनी भयानक थी कि बस और ट्रक दोनों में आग लग गई। आग के तेजी से फैलने के बायस मुतअद्दिद मुसाफिर बस के अंदर ही फंस गए और उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया, जिससे उनकी मौके पर अलमनाक मौत वाक़ई हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही डीएसपी शिव कुमार जय वक़ू पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। मुकामी लोगों और फायर ब्रिगेड के अमले की मदद से आग पर काबू पाया गया। जख्मी मुसाफिरों को इब्तदाई तौर पर चित्रदुर्गा जिले अस्पताल ले जाया गया। उनमें से 2 शदीद जख्मी हैं और उन्हें इस मजीद इलाज के लिए बेंगलोर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और हादसे की वजूहात की जांच कर रही। इब्तदाई तहकीकात में तेज रफ्तारी या गफलत का पता चलता है, हालांकि सरकारी तस्दीक तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही की जाएगी। उत्तराखंड हुकूमत ने अवाम को बड़ी राहत देते हुए सीएनजी और पीएनजी की कीमतें कम करने की सिमत में एक अहम कदम उठाया। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की सदारत में हुई काबीना मीटिंग में फैसला लिया गया कि रियासत में सीएनजी और पीएनजी पर लगने वाला वैट 20% से घटाकर 5% कर दिया जाए। इस फैसले का बराह रास्त असर उन लोगों को मिलेगा जो सीएनजी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या घरों में पाइप वाली गैस का इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत का मानना है कि वैट घटने से सीएनजी और पीएनजी सस्ती होगी, जिससे लोग पेट्रोल व डीजल की जगह माहौलियात के लिए बेहतर मुतबादिल इख्तियार करेंगे। इससे न सिर्फ आम लोगों का खर्च कम होगा, बल्कि रियासत में ग्रीन व क्लीन एनर्जी को भी फरोग मिलेगा। टैक्सेस में बड़ी तखफीफ के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीएनजी की कीमत 13 से 15 रुपए फी किलो तक कम हो सकती है, जबकि पीएनजी की कीमतों में 5 से 7 रुपए तक की राहत मिल सकती है। इससे रोजाना सफर करने वाले गाड़ी मालिकान और घरों में गैस इस्तेमाल करने वालों की जेब पर बोझ कम होगा। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती के खानदान से एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती ने इस बात की इत्तला खुद दी है। बीएसपी के कौमी कन्वीनर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद के यहाँ बेटी के तौर पर खानदान में एक नए रुकन का इजाफा हुआ है। साबिक वज़ीर आला यूपी मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के कौमी कन्वीनर आकाश आनंद के यहाँ बेटी की शक्ल में खानदान में नए रुकन की आमद पर तमाम लोगों में खुशी की लहर। मेरे लिए इससे भी ज्यादा खुशी और फख्र की बात यह है कि आकाश ने अपनी बेटी को भी मेरी ही तरह बहुजन समाज के मिशन के लिए खुद को वक्फ करने के लिए तैयार करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसका तहे दिल से इस्तकबाल है। माँ और बेटी दोनों मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। वाज़ेह है कि आकाश आनंद मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उन्होंने लंदन में MBA की तालीम हासिल की थी, जहाँ उनकी मुलाकात प्रज्ञा सिद्धार्थ से हुई। दोनों ने गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में 26 मार्च 2023 को शादी की थी। इसके बाद 28 मार्च को नोएडा में उनका रिसेप्शन हुआ था। आकाश आनंद की अहलिया प्रज्ञा सिद्धार्थ एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर प्रज्ञा बीएसपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं।
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिजारती परवाजें शुरू करने जा रहा ये नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट न सिर्फ मुंबई के देरीना हवाई ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगा बल्कि शहर को एक आलमी मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम की तरफ ले जाएगा, जैसा मॉडल लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई जैसे आलमी शहरों में देखने को मिलता है। इफ्तिताह के पहले ही दिन इंडिगो एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर की घरेलू परवाजें नवी मुंबई एयरपोर्ट से चलेंगी। पहले दिन कुल 15 तयशुदा परवाजें चलाई जा रही जो मुल्क के 9 बड़े शहरों को जोड़ेंगी। इब्तदाई मरहले में एयरपोर्ट का ऑपरेशन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। इस दौरान रोजाना ज्यादा से ज्यादा 24 परवाजों और 13 मंजिलों तक राब्ते की गुंजाइश, जबकि फी घंटा 10 तैयारों की आमद व रफ्त को संभालने का इंतजाम। फरवरी 2026 से एयरपोर्ट को मरहलावार तरीके से 24/7 ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाएगा। इस मौके पर एक मुसाफिर ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि मैं नवी मुंबई में रहता हूं और मैं पहली परवाज से बेंगलोर जा रहा हूं। ये मेरे लिए एक खास मौका है क्योंकि मैं नवी मुंबई से पहली बार उड़ान भर रहा। एक दीगर मुसाफिर ने बताया कि आज मैं गोवा जा रहा हूं। मेरी फ्लाइट हैदराबाद होते हुए गोवा जाएगी। मैंने कलम्बोली और पवेल से हवाई अड्डे तक का सफर किया ताकि मैं वक्त पर अपनी फ्लाइट पकड़ सकूं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।